Good morning, students. As you know, we are discussing about the business environment, and the meaning of business environment are those forces which are beyond the power of business, but they may impact on business positively or negatively. These forces are economical environment of the country, political environment of the company, social environment, technical environment, legal environment. All these are the element of business environment, and we already discussed about the features of business environment, in which we discussed business environment includes all external forces. The second one we discussed, there are two forces, specific and general. Specific forces are those which individually impact on firm, and general forces are those have impact on all kind of businesses. So these some kind of features we already discussed in previous video lecture. Now I'm going to discuss with you the importance of business environment. Business environment importance is what? As you aware, changes is an important feature of modern organization. Significant changes take place frequently in economic, technical, social, political, legal environment of modern organization. The environment provides both constraints and opportunities. In order to keep pace with the changes in the environment, every organization requires healthy interaction with the external environment. Healthy interaction with the external environment, it means proper scanning of business environment. कंटिन्यूसली चेंजेस हो रहे हैं, वो चेंजेस में आपके लिए थ्रेट्स भी हैं, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं. सो उनको मुझे अगर फाइंड आउट करना है कि अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स आर कमिंग, सो for that we need to continuous scan the business environment. Or if a business is continuously interact with business environment, what are the benefits or importance or advantages that kind of business avail? So we are talking about it. First, we are talking today's topic is the importance of business environment. So those business who are continuously interaction with the business environment prevail the following benefits. The first one is it helps the firm to identify opportunities and get the first mover advantage. Opportunities, what it helps the firm to identify opportunities. Opportunities means पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड्स एंड चेंजेस दैट विल हेल्प टू इम्प्रूव अ फर्म्स परफॉर्मेंस. वो पॉजिटिव चेंजेस जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, दे आर द पार्ट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. अगर आप बिजनेस इन्वायरमेंट को कंटिन्यूसली स्कैन करते हो तो यू कैन फाइंड आउट द अपॉर्चुनिटीज़ फ्रॉम देयर. सो अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट करते हो तो आप फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस ले सकते हो, यानी आप उन चेंजेस को सबसे पहले अडोप्ट करके बेनिफिट ले सकते हो. हियर इज़ एग्जाम्पल. For example, Maruti Udyog became the leader in small car market because it was the first to recognize the need for small cars in India. ठीक है, where petroleum prices were rising and there was a large middle class population. मारुति सबसे ज़्यादा पॉपुलर है अपनी स्मॉल कार के लिए. क्यों? क्योंकि मारुति ने पहले ही स्कैन किया मार्केट को कि मिडिल क्लास फैमिलीज ज़्यादा बिलोंग करती हैं इंडिया के अंदर, और ऐसे सिचुएशन में जो पेट्रोलियम प्राइसेस अप हो रहे हैं तो वहाँ पर उनके लिए ऐसी बेनिफिशियल व्हीकल उनको प्रोवाइड करनी है जो माइलेज बेटर दे, जो इकोनॉमिक हो उसके हिसाब से. सो उन्होंने स्मॉल कार्स को इंट्रोड्यूस किया और उसका फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया. ठीक है, आप और भी एग्जाम्पल दे सकते हो, लाइक ई कॉमर्स इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल. आपने स्टडी किया कि इन फ्यूचर ई कॉमर्स स्टार्ट होगा, ई बिज़नेस स्टार्ट होगा, तो जिन्होंने फर्स्ट स्टेप लिया वो सबसे ज़्यादा हायर पीक पॉइंट पर है बेनिफिट्स के मामले में. द नेक्स्ट बेनिफिट इज़ इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स. Threats refers to negative external trends and changes that will hinder a firm's performance. Threats क्या होते हैं? Opportunities क्या है? पॉजिटिव एक्सटर्नल चेंजेस, और थ्रेट्स मीन्स नेगेटिव, जो आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेंगे. अगर आप कंटिन्यूसली मार्केट को स्कैन करते हो, मार्केट को जानते हो, मार्केट के साथ इंटरेक्ट करते हो, तो आपको अपने थ्रेट्स कंफर्म हो जाएंगे. ठीक है,
और आपको एक वार्निंग सिग्नल मिल जाएगा। सपोज़ अगर आप कंटिन्यूसली मार्केट स्कैन करते हो तो आप चेक कर सकते हो कि कंपटीशन टफ होने वाला है, या जो आपके कंपिटिटर्स सब्सिट्यूशंस है, जो गुड्स आप प्रोड्यूस करते हो उसके सब्सिट्यूशंस मार्केट में अवेलेबल होने वाले हैं इन फ्यूचर, इन कमिंग टाइम। तो आप उसके हिसाब से अपनी पॉलिसीज़ फ्रेम कर सकते हो, अपने प्राइसेस पे वर्क कर सकते हो, अपने प्रोडक्ट की यूनिक फीचर पर वर्क कर सकते हो। सो दिस विल हेल्प आउट टू अ फर्म थ्रू अ प्रॉपर स्कैनिंग ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट. So it helps the firm to identify threats and early warning signals. The next benefit is it helps in assisting in planning and policy formulation. Assisting in planning and policy formulation. Planning means थिंकिंग इन एडवांस एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन मीन्स कि जो आपके ऑब्जेक्टिव्स उनको अचीव कैसे करेंगे उसके लिए पॉलिसीज़ को फ्रेम करना. सो अगर आप स्कैन कर रहे हो मार्केट को, आप इंटरेक्ट कर रहे हो एक्सटर्नल फोर्सेस के साथ, तो आपको वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ पता लग रही हैं, ठीक है, आपको थ्रेट्स पता लग रहे हैं, और इस हिसाब से अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स आपके पास दोनों अवेलेबल हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या प्लान हो सकते हैं, आपकी क्या मूवमेंट्स हो सकती हैं, आप उनको अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने के लिए या थ्रेट्स को कम्पीट करने के लिए क्या पॉलिसीज़ फ्रेम कर सकते हो, वो वेल इन एडवांस डिसाइड हो जाते हैं. सो दिस इज़ वन मोर बेनिफिट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैनिंग. द नेक्स्ट बेनिफिट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैनिंग is it helps in tapping useful resources. It helps in tapping useful resources. A business firm assembles various resources called input like finance, machines, raw material, power, water, labor from its environment including financial, government and suppliers. It supplies the environment with its output, goods and services for the customers. ठीक है, आपने प्लानिंग करी है कि आप उस अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे ग्रैब करोगे. प्लानिंग तो हो गया, बट प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपको रिसोर्सेज भी तो अरेंज करने हैं. सपोज़ आपने जो प्रोडक्ट रेडी कर रखा है उसमें आपको थ्रेट्स पता लग रहे हैं कि कंपटीशन इंक्रीज़ होने वाला है, तो आप उसकी यूनिकनेस पर वर्क करेंगे. अभी उसकी यूनिकनेस पर वर्क करने के लिए आपको रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी, तो उन रिसोर्सेज को अरेंज करना, असेंबल करना. सो दिस इज़ वन मोर बेनिफिट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैनिंग. इट हेल्प्स इन कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस. अगर आप एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को मूव नहीं करेंगे तो बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता. सो इट्स नीड ऑफ अ बिजनेस एनवायरनमेंट टू कंटिन्यूसली कीप चेंजेस विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट और विद द चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. और अगर आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस, आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंजेस ही नहीं पता कर पा रहे, तो हाउ टू अ बिजनेस कैन कॉप अप विद दिस. सो इट हेल्प्स इन कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस. The next benefit of it helps in improving performance. Help in improving performance means if we already about the aware about the opportunities, we already aware about the threats, we plan accordingly, we formulate our policies accordingly, we use the resources or tapping the resources according to our new plans and policies. So definitely it improves our performance. So firm which continuously monitor their environment and develop suitable courses of action not only improve their present performance but also continue to succeed in the market for a longer period of time. So these are some benefits of business environment. What are these? The first one, it helps the firm to identify opportunities एंड गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस. आप अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करते हो, उसके अकॉर्डिंग वर्क करके फर्स्ट बेनिफिट ले सकते हो. इट हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स. मार्केट में क्या चीज़ नहीं आने वाली है, कितना कंपटीशन होने वाला है, वो सब आप मार्केट स्कैन से कंफर्म कर सकते हो. द नेक्स्ट वन इज़ इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन. आपने थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट की, तो उनके लिए प्लानिंग करना, उनके लिए पॉलिसीज़ फ्रेम करना, आप उसके हिसाब से आप वर्क कर सकते हो. द नेक्स्ट वन इज़ इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज. यू आर प्लानिंग फॉर समथिंग, योर पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटेड, सो वी नीड टू रिसोर्सेज फॉर देम. सो अगर हमने प्रॉपर एनवायरनमेंट स्कैन किया है तो आप अपने रिसोर्सेज को, रिक्वायर्ड रिसोर्सेज को असेंबल कर सकते हो ऑन टाइम. नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस. अगर चेंजेस टेकिंग प्लेस एट फास्ट पेस, इट इज़ नॉट फैक्ट ऑफ चेंज इट सेल्फ, देन इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एज द पेस ऑफ चेंजेस. So we need to change according to environment. And the last one is it helps in improving performance. अगर आप स्कैन करते हो तो you can find out the opportunities, threats as well as
according to we can plan, we can frame our policies, use tapping resources accordingly, so we can improve our present performance as well as future performance.